हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टू योर ओन चैनल कॉमर्स विजन। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और आज की टॉपिक होगी हमारा एक नया चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जी, ये आपके क्लास 10th का 6th चैप्टर होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड लास्ट चैप्टर गैप। इफ यू नॉट स्टिल यू हैव नॉट विजिट to the particular video, please go and just check the class 10th playlist and watch it particular video, gap, generally accepted accounting principle. Today we have start the new chapter, financial accounting and reporting. ये आपके 10th ICSE का 6th chapter होगा and it's the most important chapter regarding your board exam. So start करते हैं हम। तो पहले स्टार्ट से पहले एक इंट्रो देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सो इन केस ऑफ दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, वी हैव इन्फॉर्म, वी हैव मेक द अकाउंट एंड वी हैव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इन केस ऑफ दिस चैप्टर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी हैविंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन इज द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वन इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, profit and loss account and balance sheet. But in case of non-profit organization, student, firstly we have prepared receipt and payment account. Firstly we have prepared receipt and payment account. Secondly we have prepared income and expenditure account, and at last we have prepared balance sheet. So today we have discussed about receipt and payment account, the first final account book of NPO, non-profit organization. नाम तो आपने ऐसे देख रखा है आप पे, receipt and payment account. So student, receipt and payment account is a summary of cash transaction. जी सही सुना आपने, it's record only which type of transaction? Cash transaction. Here we have record only cash transaction. Means यहाँ पे हम उसी transaction को record करेंगे जो किस में हो, कैश में हो। Credit transaction को record नहीं करते, we have record only which type transaction? Cash transaction. It is prepared by non-trading organization. It is prepared by non-trading organization. Means कि ये non-profit organization के द्वारा स्टार्ट की जाती है। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, आपने क्या समझा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन trading organization at the end of every accounting year. It is just prepared by the end of every accounting year. And student, one more thing I will just tell you, receipt and payment account is the first final account of non-profit organization. नाम तो आपने ऐसे समझ लिया कि हुआ क्या इसका मतलब ये होता है कि ऐसा अकाउंट होता है जो कैश के ट्रांजेक्शन को एज अ समरी रिप्रेजेंट करता है। एंड receipt and payment account is a real account. Receipt and payment account is a which type of account? Real account. ये सही सुना आपने, receipt and payment account is a real account. तो इसमें दो साइड होता है, एक होता है receipt साइड और एक होता है पेमेंट साइड। जो सारे रिसीट होते हैं, जो सारा रिसीविंग मनी होगा वो डेबिट साइड शो करते हैं, बिकॉज द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो जो आया वो डेबिट साइड, जो रिसीव किया वो डेबिट साइड, और जो आपने सेंड किया वो क्रेडिट साइड। सो ऑल रिसिप्ट शोन विच साइड? डेबिट साइड इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट. नाउ लिसन केयरफुली. It is a format of receipt and payment account. It is just divided in two columns. One is a debit side and this side is known as a credit side. Left hand side is a debit side, right hand side is a credit side. The first one is the receipt. The first column is the receipt. It is also known as a debit column. It record all income, all receipt. जो पैसा आया होगा वो डेबिट साइड और जो पैसा गया होगा वो किस साइड? पेमेंट साइड. So payment side will be known as a credit side and receipt side is known as a debit side. It having opening balance to cash in hand or to cash at bank. Otherwise it just having closing balance by balance CD. तो ये फॉर्मेट है. फॉर्मेट में आपको बहुत ज्यादा नहीं फोकस करना है. फॉर्मेट में ऐसे फोकस करना है कि कौन से साइड रिसीट साइड है और कौन से साइड पेमेंट साइड है. सो हमने बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? रिसीट and left hand side is what? Payment. So all receipts shown which side? Debit side. All payments shown which side? Credit side. So student, today we have just discussed about meaning of the receipt and format of the receipt. Next topic we have discussed features of receipt and payment account. तो आपने meaning clear कर लिया, format clear कर लिया. अब थोड़ा हम features को जान लेते हैं कि features क्या होता है इसका. Then first feature of receipt and payment account is what?
it is a summary of cash and bank transaction, means it record all cash transaction and all bank transaction. It record all cash transaction and all bank transaction. means कि जो भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस में रिकॉर्ड होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट में होते हैं. दूसरा, इट इज अ रियल अकाउंट. मैंने पहले बताया कि ये कौन सा अकाउंट होता है, इट इज अ रियल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज अ, you know very well it is a real account. ये अगर रियल अकाउंट होता है तो आपको फॉलो करना होता है रियल अकाउंट का रूल. और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन, डेबिट्स व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. डेबिट व्हाट्स कम इन, credit what goes out. So here we have followed the rule of real account because it is a real account. So debit what's come in, credit what's goes out. So all cash receipt, both revenue as well as capital nature, all cash receipt, both capital as well as revenue nature, shown which side, debit side. मैंने पहले बताया कि जो भी रिसीट होगी उसको आप किस साइड दिखाओगे, डेबिट साइड. And last one is similarly all payments whatever nature, it may be capital nature or revenue nature, it belong from this year or previous year or next year, it doesn't matter. वो capital nature हो, revenue nature हो, वो इस ईयर से बिलोंग करता हो या प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता हो या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता हो, अगर वो पेमेंट है तो आप कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड. अगर वो रिसीट है वो कहां दिखाओगे आप, डेबिट साइड. सो इट इज अ फीचर ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट. पहला मैंने क्या बताया, इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. दूसरा मैंने क्या बताया, इट इज अ रियल अकाउंट. If it is a real account, so we have to follow the rule of real account. What's come in, debit, what's goes out, credit. That's why all cash receipt, it doesn't matter, it belong from capital nature or revenue nature, we have to show on which side, debit side. And all cash payment shown which side, credit side. So student, we have discussed about the features, meaning as well as the format. Next topic we have importance of receipt and payment. It is also known as the uses of receipt and payment. क्या यूज, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका. तो पहला क्या होता है कि receipt and payment account serve as the basis for prepare income and expenditure. मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 अकाउंट बनाती है फाइनल अकाउंट. पहला रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा बैलेंस शीट. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड बेस फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड बेस फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज फॉर द बैलेंस शीट. मींस विदाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वी कैन नॉट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट. सो यू कैन से दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, इट प्रोवाइड बेस फॉर income and expenditure as well as the balance sheet. Next one, it alerts the management of non-trading organization about decline in cash received and increase in cash payment. मीन्स कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के समझ सकते हो कि हमारी कैश क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. अगर कैश डिक्लाइन आपको दिखती है तो तुरंत आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो कैश पोजीशन है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन होती. अगर आप देखते हो कि कैश इंक्रीज हो रहा है तो दोनों भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, दोनों कंडीशन इन्फॉर्म कर सकते हो. इफ यू फील दैट cash are declining, you have to inform to the management. If you just feel that cash are increasing, you also need to inform. तो मतलब रिसीट एंड पेमेंट के इंफॉर्मेशन से आप इजिली कैश पोजीशन को इन्फॉर्म कर सकते हो, कैश बढ़ रहा है या घट रहा है. नेक्स्ट वन, इट टेल्स एट अ ग्लांस द कैश पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मींस विथ वन ग्लांस, एक बार अगर आप रिसीट एंड पेमेंट को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कैश पोजीशन क्या है. कैश ज्यादा है मतलब रिसीट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि उसका रिसीट साइड क्या हो, ज्यादा हो. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट इट टेल्स एट द ग्लांस, इट टेल एट अ ग्लांस मतलब एक नजरिए से आप जब देख लोगे, सो यू नो द रियल कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज it is legally required under the cooperative law or cooperative society law. means कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये आपको कंपल्सरी होता है बनाना कौन सा अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सो इट इज लीगली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. यू हैव टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट एंड लास्ट वन फॉर टुडे, डिमेरिट्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. डिमेरिट्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा आप लोग. पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट रिवील, डज नॉट डिस्क्लोज सरप्लस एंड डेफिसिट फॉर द ईयर. क्यों भाई, क्यों नहीं दिखाता सरप्लस और डेफिसिट को? सरप्लस में आपको बता दूं सरप्लस होता क्या है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं बोलते हैं हम, उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम, सरप्लस, क्योंकि पहले इसका नाम हो गया नॉन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैंने उसको नहीं बोला.
मैंने उसको क्या बोला, सरप्लस। और सरप्लस कब होता है स्टूडेंट, मैं बता देता हूं आपको, व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, दैट कंडीशन इज नोन एज अ सरप्लस, एंड व्हेन एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, दिस कंडीशन इज नोन एज अ डेफिसिट। मतलब आप अपने वर्ड में, कॉमन वर्ड में बोलोगे, जब प्रॉफिट होगी तो बोलेंगे सरप्लस, किस कंडीशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बताएंगे इसको सरप्लस, और जब लॉस होगा तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। लेकिन ये काम होता किसका है, ये काम रिसीट एंड पेमेंट का नहीं होता है, ये काम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। दैट्स व्हाई स्टूडेंट, इट इज अ डीमेरिट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट डज नॉट रिवील सरप्लस एंड डेफिसिट। क्यों भाई, क्योंकि ये काम आपका किसका है, ये काम है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इट इज अ वर्क ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Next one is what is the last demerit of the receipt and payment account? It does not indicate financial position. क्यों? Why does not show the financial position? Because financial position disclosed by balance sheet. Balance sheet disclose company is solvent or insolvent. So students, today we have discussed about receipt and payment account. I just give a little glance to you, a final conclusion. Receipt and payment account is a summary of cash transaction. It is prepared by non-profit organization. It is a real account. It records both type of transaction, capital as well as the revenue nature. It doesn't matter. It belongs from current year, previous year or next year. Okay. Features, it is a summary of cash and bank transaction. It is a real account. That's why it's follow the rule of real. What's come in debit, what goes out credit. It's just all cash receipts on debit side and all cash payments on credit side. Next one is the importance. Receipt and payment accounts provide base for income and expenditure as well as the balance sheet. It's alert to the declining of the cash. It's provide information increase in cash payment. Next one is it tell at the glance, with the one glance you know the real position of the organization, and it is legally required in case of the cooperative society, in case of the non-profit organization. And last one is the demerit. It does not disclose surplus and deficit because it is the work of income and expenditure. And last one is it does not reveal the financial position of the organization because it is the work of the balance sheet. So it's enough for today. I hope you understand. Thank you very much.